everyone, welcome back to the Grace of Mind by Ramneet, and I'm Ramneet Kaunarwala, your mental health professional, here to support you in your mental health well-being. And in today's episode, the very third episode of the Thursday Informative series, I have in space for you depression, the major depressive disorder, the clinical depression which is caused to many individuals and which is what many of us are worried about. Many of us just name it as a layman. What do I mean by that? Many of us just say that we have depression, and we would just end up saying that we have depression even if we are feeling way too much stressed. We forget to realize that this is a clinical disorder, and only a clinical person who is actually fit to diagnose a clinical disorder will tell you whether or not you have depression. A diagnosis takes a number of several days, weeks, or months to be diagnosed, and in these months, weeks, or days, there are certain symptoms and signs which need to be associated and identified with an individual to actually state him as being a person with one certain clinical disorder. Now, how do we identify if an individual has clinical disorder? I'm going to tell you. I'm going to tell you some major symptoms of clinical disorder, and also I'm going to give you a number. The number of people who are having clinical depression and they are dealing with it. Also, which gives you a reminder, please visit a mental health professional as and when you need help, as and when you need that person to speak to tell that this is happening in my life and I need help about it. You know, your friends, your family, your peer group, your colleagues may not always be able to help you. We often need help from people who are trained with a degree to deal with our issues, our personal and professional issues. To convert this and translate all what I meant in Hindi, I will just tell you so that people who are not literate enough or aware of English language enough to comprehend it know what I mean. डिप्रेशन क्या है? मेरे इस तीसरे एपिसोड में, थर्सडे इन्फॉर्मेटिव सीरीज के एपिसोड में, मैं आप सबसे बात करना चाहूँगी डिप्रेशन के बारे में, क्लिनिकल डिप्रेशन के बारे में। ये बहुत आम हो गया है कि सब लोग बोलने लग गए हैं मुझे डिप्रेशन है, मैं डिप्रेशन में हूँ, तुमने मुझे डिप्रेशन दिया हुआ है, क्या है तुम्हें पता नहीं है, मैं डिप्रेस हो चुकी हूँ, डिप्रेस हो चुका हूँ। क्या आप सब जानते हैं डिप्रेशन का मीनिंग क्या है? नहीं, आपको फिक्र है, आप परेशान हैं, आप स्ट्रेस में हो सकते हैं, पर आप डिप्रेशन में यूं ही नहीं हो सकते जब तक आपको उसका कारण ना मालूम हो, जब तक आपको ना पता हो कि मैं डिप्रेशन में हूँ तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको डिप्रेशन में करार करेंगे। ये एक क्लिनिकल प्रोफेशनल का काम है, एक थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट का काम है, या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का काम है, जो आपको बता सकते हैं कि शायद आप डिप्रेशन में हैं या हाँ आप डिप्रेशन में हैं और उसके लिए आपको क्या करना है। ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते तो हम लोग इन कुर्सियों पर बैठकर आप सबको ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ तक कि किसी भी डिसऑर्डर को जो मेंटल हेल्थ से जुड़ा है या मानसिक हेल्थ से जुड़ा है, उसको करार करने के लिए कुछ दिन, हफ्ते या महीनों तक का समय चाहिए होता है हमें पता लगने के लिए कि इतने दिन तक आपके पास कोई दिक्कत थी जो दोहराई जा रही थी, जो गिनती की उन दिक्कतों में से एक है जो एक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करते हैं, एक डिसऑर्डर को बताते हैं कि वो हाँ आपको हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम किन सिम्टम्स पर काउंट करें तो आपको पता लगेगा कि आप डिप्रेस हो सकते हैं और यू मे बी इन डिप्रेशन। बिफोर दैट
डिप्रेशन इज अ कॉमन मेंटल स्टेट डिसऑर्डर. ये डिसऑर्डर आपकी मानसिक स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है, which is affecting more than 264 million people worldwide. ये 264 मिलियन लोगों को पूरी दुनिया भर में इफेक्ट करता है. इन नंबर्स का मतलब आप सब जानते ही होंगे, जिसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन बीइंग किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में अपनी लाइफ में डिप्रेशन के दौर से गुजरते हैं. चाहे वो आइडेंटिफाई कर पाए या नहीं, चाहे वो किसी डॉक्टर की हेल्प लेते हैं या नहीं, पर वो गुजरते ज़रूर हैं और ये उन पर बीतता है. अब आप पार कर जाते हैं या नहीं कर जाते, ये आपकी स्थिति पर डिपेंड करता है और उस पर भी डिपेंड करता है कि आप हेल्प लेने पर मजबूर हुए या नहीं, आपने हेल्प लेना ज़रूरी समझा या नहीं, एंड वेदर और नॉट यू सीक साइकाट्रिक असिस्टेंस एंड टुक मेडिसिन्स. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय persistent sadness, लगातार उदासी, lack of interest, किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं रहती है जिनमें पहले आपको दिलचस्पी थी, in previously enjoyable activities or those which were rewarding. It can also disturb your sleep and appetite. Tiredness and poor concentration are also very common. आपकी नींद खराब हो सकती है, आप जल्दी जाग सकते हैं या आप बिल्कुल नहीं सो पाए, ऐसा भी हो सकता है. आप बहुत ज़्यादा भी सो सकते हैं. आपका एपेटाइट यानी आपको भूख लगनी कम हो जाएगी या बहुत ज़्यादा लगने लगेगी. आपका किसी भी चीज़ पर फोकस करना कम हो जाएगा और ये सब कॉमन सिम्टम्स है डिप्रेशन के. इट इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी. डिप्रेशन डिसेबिलिटी का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉज है. डिप्रेशन के इफेक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं. द इफेक्ट्स ऑफ डिप्रेशन में भी लॉन्ग लास्टिंग, ये लंबे समय तक रह सकते हैं और रिपीटिव हो सकते हैं, बार बार हो सकते हैं और एक इंसान की ज़िंदगी को बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से दे कैन इम्पैक्ट. उसकी एबिलिटी डेली लाइफ के रिचुअल्स और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की घट सकती है और यू मे नॉट लीड अ रिवॉर्डिंग लाइफ. सी what it causes to your mental health. It really impacts you a great deal. And somebody in depression usually say, चलो ना जाओ, तुम डिप्रेशन बोल रहे हो. हम इजीली किसी को भी कह सकते हैं या कह देते हैं, जो नहीं कहना चाहिए, कि अगर तुम डिप्रेशन में हो तो तुम ठीक है, तुम कुछ भी हो. कुछ भी हम बैड वर्ड्स यूज कर देते हैं. कई बार हम उस इंसान से बात करना पसंद नहीं करते. वी नीड टू बी एम्पैथेटिक एंड नॉट सिंपैथेटिक. सिंपैथी और एम्पैथी में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जो हमें समझना है, हमें यूज करना है अपनी डेली लाइफ में. विच मीन्स दैट जिस भी इंसान को कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, आप उसको ये नहीं बोलोगे कि ठीक हो जाएगा, ये सहानुभूति नहीं दोगे. ऑब्वियसली वो ठीक हो जाएगा. तो किसी भी फिजिकल इलनेस की तरह मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है और अगर ठीक नहीं भी होती है पूरी तरीके से तो आपके जीने का तरीका बदल देती है और वो बेटर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अ साइकियाट्रिस्ट एंड अ थेरेपिस्ट. ऑल्सो काउंसलर्स एट टाइम्स. The counselors, the psychiatrists, the therapists, the life coaches who are trained to give therapies play a major role in helping people with mental health illnesses overcome and lead a fruitful life. Mental health professionals आपको जिंदगी को वापस पुराने तरीके से, अच्छे तरीके से जीने के लिए एबल्ड बनाते हैं अपनी टेक्निक्स के थ्रू, अपनी काउंसलिंग के थ्रू, अपने थेरेपी के थ्रू और मेडिकेशंस के थ्रू. और मत भूलिए कि जिस केस में आप मेडिकेशंस ले रहे हैं, मेडिकेशंस आपके लिए लेना बहुत ज़रूरी है. आप किसी भी पॉइंट पर अगर उनको छोड़ेंगे तो ये आपके लिए दुगनी मुसीबत बन जाएगी, दुगनी प्रॉब्लम दे देगी. बिकॉज समथिंग विच इज़ हेल्पिंग यू टू लीड अ वेरी गुड लाइफ, अ फ्रूटफुल लाइफ, काइंडली कंटिन्यू टू टेक इट. Kindly continue to be in the full course of taking this and completing it. That was my take.
ऑन द फार्माकोथेरेपी. दिस इज वन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट. मेडिकेशन एक तरीके का ट्रीटमेंट है, एक ट्रीटमेंट मेजर है. दिस इज नॉट ऑल ऑफ द ट्रीटमेंट. मेडिकेशन ही सारा ट्रीटमेंट नहीं है. आपको काउंसलिंग भी चाहिए, आपको थेरेपी भी चाहिए. कोई केसेस में शायद हम नहीं लेते या नहीं दिलवा पाते, बट मोस्ट केसेस में मेडिकेशन और थेरेपी साथ में वर्क करते हैं एंड दे वर्क वंडर्स. नाउ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स बता दी मैंने आपको. जो थेरेपी है, जो काउंसलिंग है, जो लाइफ कोचेस का काम है. और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जब हम आपको मेडिसिन देते हैं. ये मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ लो मिडिल इनकम कंट्रीज में ये ट्रीटमेंट्स अभी तक अवेलेबल नहीं है, एब्सेंट हैं या कम है, क्योंकि ये कंट्रीज अंडर डेवलप्ड हैं. An estimated of 76 to 85% of people suffering from mental disorders in the countries who are undeveloped or underdeveloped lack access to treatment they need. And when we are here to help, when we have the resources, when we have help available, I insist, please go for help, please take help, please seek help, because you have it available around. Many people in many countries, इनके पास help ही नहीं है, उनके पास resources नहीं है, उनके पास mental health professionals नहीं है, क्योंकि वो countries underdeveloped हैं. डिप्रेशन के कॉजेज कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस हो सकते हैं. आपके सोशल, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं. सोशल में आपका एनवायरनमेंट आ जाता है, जिस माहौल में आप रह रहे हैं वो आ जाता है. साइकोलॉजिकल, आप क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, किन विचारों को प्रायोरिटी देते हैं. और बायोलॉजिकल, जैसे जीन्स, कई लोगों के जीन्स में होता है. जब एक इंसान के जीन्स में डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम या कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड इशू होती है, हम इसे स्ट्रेस डायथिसिस मॉडल कहते हैं. स्ट्रेस डायथिसिस मॉडल का मतलब है कि आपके जीन्स में ऑलरेडी कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई एक ऐसी इलनेस है जो आपको हो सकती है. अगर एनवायरनमेंट आपको उस ही चीज़ को एम्फोसाइज के साथ देता है, बीट विलिंग एंड बीट अनविलिंग. Supposingly, in my genes, I'm already prone to depression, and I get my life as the most crucial as possible. I have sufferings in my life. Somebody dies who's close to me. I lose somebody. I lose track of friends. I lose track of family. I do not. At times, you do not have all those reasons, but you just continue to feel sad. Adding on, my profession doesn't go well. Adding on, my education is not well. So all those factors जो environmental है, अगर मेरे सामने आ जाते हैं और मुझ पर उनका असर होता है, मेरी मेंटल हेल्थ पर उनका असर होता है, मैं स्ट्रेस में जाती हूँ, तो जो ऑलरेडी मेरे बॉडी के अंदर वो जीन है, वो एक सिम्टम है, वो एक एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हो सकता है, उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. सो दैट इज व्हाट बिकम्स द कॉज ऑफ डिप्रेशन. अब क्लिनिकल डिप्रेशन के कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो बहुत कॉमन हैं एंड विच आर सपोज टू बी देयर इन इंडिविजुअल टू बी डायग्नोस्ड एज डिप्रेशन और क्लिनिकल डिप्रेशन. आपका मूड ज़्यादातर डिप्रेस्ड रहेगा, आप उदास रहेंगे. You might have significant loss of interest in activities which used to give you pleasure earlier or which were rewarding for you earlier. Significant weight loss when not dieting and or weight gain. तो 3 बातें जो अभी तक मैंने बताई वो ये हैं कि आप उदास रह सकते हैं, आप वेट गेन या वेट लूज कर सकते हैं when not dieting and when not overeating, और आपका इंटरेस्ट किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जो आप पहले पसंद करते थे करना या जो आपके लिए अच्छी होती थी उसको लूज कर सकते हैं. आपको इंसोम्निया हो सकता है या हाइपरसोम्निया हो सकता है. इंसोम्निया इज व्हेन यू स्लीप नॉट एट ऑल एट नाइट, यू फेल टू स्लीप इवन व्हेन यू ट्राई. हाइपरसोम्निया इज व्हेन यू sleep beyond your limit, beyond the limited or the required sleep time for yourself. So आप ज़्यादा सोने लगेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा कम सोएंगे. Fatigue
और लॉस ऑफ एनर्जी इन एवरी डे, नियरली एवरी डे। आपको रोज थकावट होगी, आप रोज लेथार्जिक फील करेंगे, रोज बिल्कुल थके टूटे रहेंगे, ऑलमोस्ट हर रोज एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी बॉडी में। फीलिंग्स ऑफ वर्डलेसनेस और एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट गिल्ट नियरली एवरी डे, और गिल्ट अबाउट बीइंग सिक। सो किसी भी बात का आपको गिल्ट होगा, आपको बुरा लगेगा कि ऐसा क्यों है, मैं बीमार हूँ तो मैं क्यों हूँ। आप बिल्कुल यूजलेस फील करने लगेंगे, आपको लगेगा मैं किसी काम की नहीं हूँ या किसी काम का नहीं हूँ, कुछ नहीं है मुझ में जो वर्थ है, और ये ऑलमोस्ट एवरी डे होता है। Diminished ability to think or concentrate or indecisiveness nearly every day। आप रोज ही सोचने की क्षमता कम महसूस करेंगे या कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे, कोई फैसला नहीं ले पाएंगे लगभग हर दिन। तो ये भी एक सिम्टम है। आपको बार बार मरने के ख्याल आएंगे कि मैं कुछ कर लूँ, सुसाइड कर लूँ, मरने के ख्याल आएंगे, which means you have suicidal thoughts nearly every day। These symptoms cause clinically significant distress or impairment in social, occupational or other important areas of functioning। जितने भी ये symptoms की मैंने बात की, आपकी जिंदगी के हर एक पहलू में, हर एक एरिया में आपको नाकामयाब प्राप्त कर देंगे, आप नाकामयाब हो जाएंगे कोई भी काम करने में। ये सभी सिम्टम्स उन चीज़ों पे असर करेंगे जो आपकी रोज दिन की जिंदगी का एक हिस्सा है। इन फैक्टर्स के साथ कोई भी ऐसा सिम्टम एसोसिएटेड नहीं है जो आपकी रोज दिन की सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है, जैसे फिजियोलॉजिकल कोई भी फैक्टर हो सकता है, दैट नॉट रिलेटेड टू इट। एंड अमंग ऑल दोज 9 symptoms which I just read for you from the DSM-5 criteria for major depressive disorder, 5 or more of the symptoms present for at least 2 weeks duration and represent a change from previous functioning. At least one of the symptoms is either depressed or loss of interest। ये डायग्नोसिस हम नहीं परफॉर्म कर सकते, डायग्नोसिस सिर्फ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट परफॉर्म कर सकता है या साइकियाट्रिस्ट परफॉर्म कर सकता है। पर ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो आप सब दिमाग में रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। खास तौर पे अगर कोई बहुत ज़्यादा उदास रह रहा है, जिसको आम जिंदगी के कार्य करने में बहुत ज़्यादा निसंतुष्टि हो रही है या नहीं खुश फील कर रहा है वो, तो आप इन सिम्टम्स को प्लीज़ काउंट करें, प्लीज़ मार्क दीज सिम्टम्स, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर नियर एंड डियर वंस, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर ओन मेंटल हेल्थ। एंड इफ यू फाइंड someone around you suffering through any of these few symptoms, जिनमें से पहले 2 में से एक होना ज़रूरी है, either loss of interest in earlier pleasurable activities or loss of mood or sad mood continuously for 2 weeks। So as you note all these points and as you mark them as important for yourself and for your near and dear ones, also keep in mind that you need to visit a mental health professional, and these all cannot be resolved sitting back home. These can all not be resolved without seeking help. So meanwhile it is a pandemic's time, kindly sit back home, talk to a good mental health professional, look for the right professional online, or find for somebody who's very near to you and is not opening their clinics or are not visiting their nearest hospitals but are also providing online counseling and clinical services। आप अपने आसपास के किसी डॉक्टर को खोजें जब आपको लगता है कि हेल्प चाहिए, क्योंकि घरेलू नुस्खे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में नहीं काम करते हैं। आप अपने आसपास किसी भी प्रोफेशनल को खोजें, ऑनलाइन किसी प्रोफेशनल को खोजें, ऑनलाइन काउंसलिंग, थेरेपेटिक या फिर क्लिनिकल सर्विसेज दिलवाएं, और अपने आसपास के जितने भी करीबी लोग हैं उनमें से किसी को भी ज़रूरत है तो हेल्प दिलवाएं। खुद को ज़रूरत है तो सबसे पहले जाकर हेल्प लें, बिकॉज योर हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर वेल बीइंग ओवरऑल physical and mental is very very important। Keeping that in mind, I would like to tell you all that I am a mental health professional,
I give counseling services. I also give cognitive hypnotic coaching, life coaching services. Hence, I am eligible to provide therapies also, provided that I am handling the cases which are of my relevant area. In cases where I feel that I need to refer them to a senior, I do the very same. Kindly feel free to reach out to me. Reaching out to someone is very important. So किसी को भी जो आपकी नॉलेज में है, जिनको आप जानते हैं, please reach out to them. For my details, please look at the description box below. You will find my email ID, you will find my Instagram portal, you will also find my Facebook portal. And you can reach out to any of them to drop me a message that you need help with this concern, or somebody who's near and dear to you needs help. Also, please like, share and subscribe this video, and share as much as possible so that other people can seek help and other people can benefit from these videos. Thank you. Till then, the next Thursday I will see you with another informative video. Take care, take good care of your mental health, and keep smiling. Bye bye.